Yes, sir. Okay. So very good morning, all of you. Uh, in our previous session, we were discussing about the measures of central tendency and measures of dispersion, and we had gone through all the theoretical part related to that. And today we are supposed to discuss mean median mode. That means measure of central tendency for the continuous random variable. And then after we will go for the dispersion, like standard deviation also for the continuous random variable. And once we are good with that, once we are good with the examples related to that continuous random variable, then we will be quickly switching over to the some spatial probability distribution. So let me take you for one of the example related to continuous random variable where we are supposed to find mean median, more like that. Okay, this is example number 30. In the last lecture we had done with some of similar kind of example related to discrete random variable. Now today we are dealing with the continuous random variable. Observe here, I had not mentioned the continuous random variable in the instruction, but instead of that, what I had written, if the density function, now observe the density. Density means we are quite good. By the word density function, we are dealing with continuous random variable. Continuous random variables probability function is known as a density function, or in other words probability density function. तो या वो बोले probability density function या तो सिर्फ बोले density function. It's clear in our mind we are dealing with the continuous random variable. Okay, so in the density function of a random variable x is given as below. This is the function provided, which is known as the density function. We are supposed to find the value of k. Expectation of x माने कि e of x माने कि mean. Then after, we are not interested in harmonic mean, we'll skip this. Then we'll go for the median, then mode, variance, and once we are having a variance, then its positive square root will leads to standard deviation. And we are not interested in mean deviation. इसका भी कुछ काम नहीं है. Good. So we'll go for, we are trying to trace this 5 question: value of k, expectation of x, median, mode, and variance, and standard deviation also. Sorry. So we are trying to trace this 6 values. Let's see how we will do this. First of all, the provided is density function, is it now? And we are quite clear about some of the properties related to density function. If it is a density function, so I can clearly say that integration running from minus infinite to infinite, f of x dx will be surely 1. तभी तो ये डेंसिटी फंक्शन होगा. नाउ ऐसे काफी सारे एग्जांपल हमने किए हुए पहले, इज इट ना? याद है सभी को? वी हैड डन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर. याद है किसी को? हाँ या ना? कोई बोल नहीं रहा. कोई बोल नहीं रहा. हेलो, आर यू देयर? आर यू गाइस? Yes, sir. ये है ना? हाँ, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके we will gonna trace the value of k. Now this particular function is just defined over 0 to 1. So 0 से नीचे मानी कि 0 to infinite, minus infinite to 0, 1 to infinite में function 0 है, देखिए यहाँ पे है. And this function is just having a definition in the interval 0 to 1. So ये जो इंटीग्रेशन है इसका 3 पार्ट निकालूंगा मैं. माइनस इन्फाइनाइट टू 0 ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पूरा नहीं लिखूंगा. माइनस इन्फाइनाइट टू 0, फिर लिखूंगा 0 to 1, और फिर लिखूंगा 1 to infinite. इज इट? इसका एडिशन 1 होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब यहाँ पे फंक्शन 0 है, यहाँ पे भी फंक्शन 0 है, तो ये दोनों का कुछ काम ही नहीं. इज इट? So we are just going to trace integration running from 0 to 1 f of x dx. और यहाँ पे जो f of x है वो दिया हुआ है, that is k times kx times 1 minus x. और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 1 से. उसमें जो एक अननोन है k, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे करेंगे? लेट मी शो यू. As f of x is probability density function, minus infinite to infinite f of x dx as 1, as I had mentioned over here. And इस इंटीग्रेशन के 3 पार्ट निकलेंगे, लेकिन we are just interested in 0 to 1 because minus infinite to 0 and 1 to infinite will have the value 0 for the function f of x. और ये छोटा सा इंटीग्रेशन देखिए, k को मैं बाहर रखूं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, then it will be x minus x square. Yet I had not upped the integration. Now we will go for the integration of x का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा? x square by 2, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3, and then we will replace the upper limit lower limit. कैसे होगा? Let me show you इसको.
निकालने दो, yes, this will be the integration. Now I'm supposed to replace the limits 0 to 1. अगर 1 replace कर दूँ तो 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2 minus 1 by 3 will leads to 1 by 6. 0 replace करने से 0 ही रहेगा दोनों. So k times 1 by 6 it will equals to 1 because right hand side में मेरे पास 1 है ही है. तो यहाँ से अगर मैं simplify करूँ तो k की वैल्यू निकलेगी 6. Now once we are good with the k, once we are having k, then I can modify this function. तब जाके ये फंक्शन में मॉडिफाई कर पाऊंगा. कैसे मॉडिफाई करूंगा देखिए, रुक जाइए, एक्सपेक्टेशन पे जाने से पहले my function should be now like this: f of x equals to, in place of k I'm supposed to write down 6x, sorry, not k, 6x 1 minus x for the interval 0 is less than x is less than 1. So this is my function now. So we are done with the first part. We had identified the value of k. Now let's go for the expectation. अब expectation of x मानी की mean, मानी की e of x, उसकी definition क्या है, उसके notation क्या है, e of x, or you may represent a mu. Mu is also the notation for the mean, notation for the expectation, notation for the average. That's it. So expectation e of x. अगर discrete के साथ बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये थी summation x f of x, is it? वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है. Is it? Now, once we are dealing with the continuous random variable, that means instead of dealing with the summation, we need to deal with the integration. मुझे इंटीग्रेशन के साथ डील करना होगा. And this f of x is nothing but that probability density function, is it? So I'm replacing that particular value, that x f of x. f of x क्या है, यहाँ पे मेरे पास है 6x 1 minus x. Replacing that, 6 को बाहर रख दूं और x square को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो x square into 1 it will be x square, 6 तो बाहर ये x square into x it will be x cube. छोटा सा इंटीग्रेशन है, x square का इंटीग्रेशन x cube by 3, x cube का x raised to 4 by 4, लिमिट रिप्लेस कर दूं 0 1, तो वैल्यू निकलेगी 1/2. वो सिंप्लिफिकेशन इज क्वाइट इजी. आई एम नॉट गोना deal with that. So it's very very easy. At the end I'm having the value of expectation e of x लिखूं या तो फिर mu लिखूं, दोनों एक ही है. टेक केयर. हाँ, mathematical expectation you may denote as capital E of x, or you may denote as a mu, or you can write it as a mean, or you can write it as expectation, or you may use the word mathematical expectation. All these are the similar words. So mean की value निकली 1/2. We are good. So we are done with the second part also. अब हार्मोनिक मीन तो हम नहीं करने वाले because we are not including that. हार्मोनिक मीन को skip कर दूं, रुक जाओ. Yes, now we are interested in median. Sorry. अब median क्या है? This is very very important. What is median? Median is a point which actually divides. Yes, please. If any of you will, then it will be good. क्या median कोई बोलना चाहता था, कोई एक? Someone of you had unmute yourself. शायद किसी ने किया था. बोल दे भाई. Okay, नहीं किया था. Okay, what is median? Median is actually the point which divides the entire distribution into two equal parts, is it? तो entire distribution माने कि जो भी distribution है मेरा, जो भी distribution है, I don't know right now, I don't know the nature of that particular curve, but मान लीजिए कि ऐसा कुछ curve है, suppose. So I'm supposed to identify one of the point over the x-axis. That means कि here we all know that x-axis represents the value of random variable, y-axis represents the probability related to that random variable. अब यहाँ पे कोई एक ये जो अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक बात फिक्स है कि ये पूरा एरिया 1 होगा. Is it? All this area will be 1 surely. ऐसा नहीं है कि x-axis से पॉजिटिव साइड में होगा, वो नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, बट जस्ट रिप्रेजेंटेड रैंडमली मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. Is it? So don't worry about that. मान लीजिए कि this is the whole entire region. So what we are looking for the median, we are looking for one of the point on the x-axis which divides this entire region into two equal parts. मुझे x-axis पे कोई एक point ऐसा चाहिए कि जहां से ये पूरा जो एरिया है ना वो equally divide हो जाए. Suppose approximately I am mentioning this particular point कि मान लीजिए शायद this is a point on x-axis which divides ये area भी half है और rest of this area is also half. Then this particular point, if you are able to identify this particular point, then it will be known as a median. तो इसको हम बोलेंगे median, capital M. So this is what we are looking for. So क्या करेंगे हम? Minus infinite to M or
m to infinite, m to positive infinite. इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू m एंड m टू इनफाइनाइट मस्ट बी हाफ, दोनों हाफ हाफ होने चाहिए, कोई एक का यूज कर लीजिए. चलिए कैसे करेंगे, लेट मी शो. सो व्हाट आई एम यूजिंग माइनस इनफाइनाइट टू m. अब f of x dx must be half. यहाँ पे जो 1 by x लिखा है ये, this is a kind of typo. I need to correct that. I can't use 1 upon x over there. Yes, this is a kind of typo. So let me erase that. Minus infinite to m, f of x dx must be half. अब f of x क्या है हमको पता है, f of x is k times x, 1 minus x, k की वैल्यू 6 हमको पता है. So I'm just replacing that. 6x 1 minus x is nothing but f of x. So अब देखिए यहाँ पे और एक बात. Earlier the limit was minus infinite to m. Now I'm using the limit 0 to m. Why? Because minus infinite to m जो है, suppose this is my median m and somewhere around there I'm dealing with the 1. तो मुझे तो पता है so this point is minus infinite, तो मुझे पता है minus infinite से 0 तक तो जो भी f of x है वो 0 ही है. Here it is. 0 से 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन है, 1 से बड़ा है तो भी डिफाइन नहीं है. So what I'm doing, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा शायद. So 0 से m, I'm not sure whether m is greater than 1 or less than 1, पता नहीं है, पर 0 से m तक I'm taking that functional value f of x, is it? Now well approaching we will dealing with the similar kind of integration. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 6 को बाहर रख दूं, and that's similar kind of multiplication. Observe one more thing, on the right hand side we are having 1/2 because we are dealing with the median, we are using the definition of median. So simple integration होगा. m जो है, जो मीडियन हम फाइंड कर रहे हैं वो लिमिट्स में है, यही लिमिट्स में है कहीं, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है. सो आई एम रिप्लेसिंग द लिमिट रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ऐसा इक्वेशन आया m के फॉर्म में. दैट विल बी श्योरली दैट विल बी ए क्यूबिक इक्वेशन. अगर इसको ज्यादा सॉल्व करूं तो ये क्यूबिक इक्वेशन निकलेगा लाइक दिस. दिस विल बी द फाइनल वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन. देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है. m cube, the highest power of m is m cube, n of m square, m वाला टर्म एब्सेंट है, कांस्टेंट इज देयर, इक्वल्स टू 0. और एक छोटी सी बात को सभी को पता है हाई स्कूल से कि इफ यू आर डीलिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके 2 रूट्स होंगे. इफ यू आर डीलिंग विद द क्यूबिक इक्वेशन तो उसके पास 3 रूट्स होंगे. इफ यू आर डीलिंग विद द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके पास 4 रूट होंगे. जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उतने रूट्स उस पॉलिनोमियल के पास होते हैं. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल जो कि जिसका पावर 3 है. सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो m की 3 वैल्यू निकल सकती है. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इसको सॉल्व करने से m की 3 वैल्यू ये निकल रही है 1/2. वेट, लेट मी इरेज दिस. 1/2, then after 1/2 plus or minus root 3/2, 1/2 plus root 3/2 and 1/2 minus root 3/2. Now we need to be sure कि इनमें से क्या हर कोई मीडियन है, एक ही मीडियन है या ज्यादा है. अब what is my logic for that? But the median cannot be more than 1 as we have 0 is less than x is less than 1. Our distribution, a random variable, is having a definition for the probability density function, that is k times x 1 minus x square, which is only defined in the region 0 to 1. इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मीन है वो इसी रेंज में हो सकता है, इससे बाहर निकलूं तो f of x 0 ही है. सो वी नीड टू बी श्योर कि इन 3 वैल्यू में से कोई एक ऐसी वैल्यू है कि जो इस रेंज से बाहर जा रही है. हाँ, अगर आप कैलसी से कैलकुलेट करो तो ये 2 वैल्यू है जो 1/2 प्लस और माइनस रूट 3/2, ये 2 वैल्यू है उस रेंज में नहीं आएगी. अगर इसको सिंपली आप कैलसी से सिंप्लीफाई करिए तो ये 0 और 1, इंटरवल 0 और 1 में से नहीं है, इससे बाहर है या तो कम है. सो वी आर हैविंग ओनली वन वैल्यू which is lying in that particular interval 0 to 1, that is m equals to half. So I need to declare that my median is half for this particular probability density function. We are not that much worried about this mean median mode. Okay, ये सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं. I'm not going to include such tedious kind of example because I know that जब आप when you guys will try to solve this cubic equation, it will take at least 4 to 5 minutes. ये सॉल्व करने के लिए यहाँ से इसके रूट्स आइडेंटिफाई करने में भी आपके 5-6 मिनट जा सकते हैं. But this is just for your information, this is just for your knowledge. I'm not gonna include such kind of example in the examination, don't worry, because these are not the topics which are listed in our syllabus. But I cannot skip these things. मैं सिलेबस खत्म करने के लिए ऐसी सारी जो बेसिक बातें हैं उसको स्किप नहीं कर सकता, because I need to clear each and everything in your mind. So by that way we can define median
m equals to half. अगर किसी को डाउट है तो अभी बोलिए, और I will be moving for the mode, और mode में we will be taking care for that second derivative test. But before moving for the mode, let me know whether we are good with this information or not. Information, the things related to median, क्या इसमें आप श्योर है? कोई डाउट है तो बताइए. जो भी 13-15 लोग हैं यहाँ पे, हर कोई रिप्लाई कर दे एक बार जल्दी से प्लीज, whether you guys are good with this or not. Yes, sir. Good. Okay. ऋषभ बोल रहा है यस, मोहम्मद बोल रहा है यस, दर्शन बोल रहा है यस, ध्रुवी તું તો વાત જ નથી કરતી આજે બેટા, કેમ છે તને? नहीं बात करे, हालो जाओ अभी. Mode. Now what is mode? One of the value of random variable for which the probability must be highest, उसी को मोड बोलते हैं. मोड क्या है? रैंडम वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है. नाउ व्हेन वी आर डीलिंग विद द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हमारे पास वो टेबल नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है. तो कंटीन्यूअस के लिए मोड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, देन आफ्टर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और f of x f dash x इक्वल्स टू 0 से जो भी स्टेशनरी पॉइंट आए वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू लेस देन नेगेटिव है. उस पॉइंट को हम बोल देंगे कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज मैक्सिमम. हियर वी आर यूजिंग अ नॉलेज रिगार्डिंग टू 12. सो मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f of x इज मैक्सिमम. वी नो दैट. अब ये f of x मैक्सिमम कैसे डिसाइड करना है, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो पूरी बात है, यही तो सस्पेंस है. अब f of x जो मेरे पास है, what kind of f of x I'm having right now. My f of x is k times x, 1 minus x, k की वैल्यू पता है 6x, 1 minus x, this is my f of x. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये होगा 6x minus 6x square, is it? पता नहीं इसका ग्राफ कैसा होगा. We can easily trace the graph of this particular, और कहाँ पे वो पिक ले रहा है. अगर ग्राफ है हमारे पास तो वो बहुत आसानी से हम फाइंड कर लेंगे कि what will be the median. But and each and everything this is defined in the interval 0 to 1 only. Okay, good. Now अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे. क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f dash x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 6x का डेरिवेटिव 6 होगा, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 12x. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव and we need to equate that particular with 0. उसको हम 0 से equate करेंगे. We will take f dash x equals to 0. Let f dash x equals to 0. So we need to equate this particular with f dash x. So 6 minus 12 x equals to 0. इसको simplify करने से निकलेगा 12x equals to 6, माने कि x equals to half. Is it? So what is this? This is nothing but this is the stationary point. उस ग्राफ का स्टेशनरी पॉइंट है. स्टेशनरी पॉइंट किसको बोलते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफ आई एम डीलिंग विद, तो यहाँ पे 3 स्टेशनरी पॉइंट है. देखिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है. स्टेशनरी पॉइंट्स मानी कि ऐसे पॉइंट कि जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है. फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है. देख, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ से फंक्शन ने अपना नेचर चेंज किया, नाउ इट इज डिक्रीजिंग. फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा था, अब यहाँ से फंक्शन ने फिर अपना नेचर चेंज किया, इट इज इंक्रीजिंग. वंस अगेन यहाँ से डिक्रीज हो रहा है. तो इतने जो भी ऐसे पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, ऑल दैट पॉइंट्स आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स. और वो स्टेशनरी पॉइंट ही मैक्सिमम या तो मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं, ये पक्की बात है. अब वो स्टेशनरी पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम? मैंने मैथमेटिकली तो ऐसे किया, f dash x equals to 0, पर क्यों ये क्यों चल रहा है, ये क्यों वर्क कर रहा है? f dash x को 0 से इक्वेट कर दे तो क्या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल जाएंगे? इसका भी प्योर लॉजिक है, आपको पता चलना चाहिए. बाय दिस पर्टिकुलर लॉजिक व्हाट आई एम डूइंग, f dash x equals 0, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक टेंजेंट फाइंड कर रहा हूँ. देखिए, आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 रख रहा हूँ. अब टेंजेंट का स्लोप जब 0 हो तभी वो x एक्सिस से पैरेलल है. सभी को पता है कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और y एक्सिस का स्लोप मैक्सिमम है, एंड द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम. अगर x एक्सिस का स्लोप 0 है और इस टेंजेंट का भी स्लोप 0 है, दैट मींस कि दिस इज अ पिक. या तो ये पिक है या तो ये सबसे कम वाला पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है. तो जो भी स्टेशनरी पॉइंट है ना, वहां पे अगर आप
टेंजेंट फॉर्म कीजिए, टेंजेंट फॉर्म करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल ही आएगा, और वो अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप भी एक्स एक्सिस जितना ही होगा। और स्लोप का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ स्लोप, इज इट ना? सो दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर टेक्निक विल यूज, ये जो यूज करे एफ डैश एक्स जीरो, उसका मतलब यही है, इज इट? ये तो आपने सीखा था, आपने 12th में दो और थ्योरम जाने थे अगर आपको याद हो तो, दैट इज रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। याद है किसी को? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये दो थ्योरम आ रहे थे, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। द सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक यू गाइस वर यूजिंग इन दैट आल्सो। सो यूजिंग दैट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, मुझे एक मिनिमम, मुझे एक पॉइंट मिला जो कि स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमको डिसाइड करना है कि x इक्वल्स टू हाफ यहाँ पे है या तो फिर यहाँ पे है, दोनों हो सकता है, वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। अब वो मिनिमम है या मैक्सिमम है वो डिसाइड करने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू गो फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। इज इट? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए एफ डैश एक्स का सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं एफ डबल डैश एक्स, तो क्या आ रहा है देखो, 6 का डेरिवेटिव 0, -12 का, -12 एक्स का -12, सो ये होगा -12। अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, मानिए कि जो भी पॉइंट यहाँ पे है सारे मैक्सिमम पॉइंट है। That means अगर ये नेगेटिव आ रहा है, हमको पता है अगर f dash x, f double dash x is negative, that means that x particular x is a maximum point. So f double x is negative, it is less than 0. That is the reason x equals to half will act as a maximum point. So वही होगा मेरी स्लाइड में, देखते चलिए। Let me erase all this thing. किसी को डाउट है इसमें? इनकी इरेज कर दूं इससे पहले? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ डाउट हो तो बताइए। क्लियर है, नहीं है? कोई बोल नहीं रहा, मतलब कि क्लियर है। चलिए, so for f of x to be maximum we need to equate that particular first derivative 0 and we need second derivative negative. So first derivative निकाला, उसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू हाफ आई, मैंने बताया था पूरा कैलकुलेट करके, और second derivative is -12 which is negative. So we are able to decide, we are able to declare that x equals to half is the maximum point. अगर वो maximum है तो उसको क्या बोल सकते कि भाई तू मोड है, is it? So this is a mode, मीन की वैल्यू भी हाफ है, मोड की, सॉरी मीडियन की वैल्यू भी हाफ है, और मोड की वैल्यू भी हाफ है for this particular question. Good. Now let's go for the standard deviation. Standard deviation करने से पहले क्या करेंगे? variance की भी एक छोटी सी फॉर्मूला थी। We need to deal with the integration minus infinite to infinite x square f of x dx minus expectation the square. अब ये कि शायद किसको याद ना हो तो मैं एक बार याद करवा दूं, रुक जाओ। What is variance of x? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस द होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये ऑफ x द होल स्क्वायर, यही थी फॉर्मूला, याद कीजिए। ये आपको याद रखनी है वेरिएंस के लिए, क्योंकि ये कहीं भी आ सकती है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, वी आर गुड कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ x फॉर द continuous and variable, that is integration running from minus infinite to infinite x f of x dx, ये छोटी सी फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन के लिए पता है। अब x की जगह पे कोई फंक्शन है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। सो लुक, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर हियर, दिस इज नथिंग बट e ऑफ x स्क्वायर, और म्यू वो तो सिर्फ एक नोटेशन है ना, म्यू e ऑफ x को म्यू भी लिख सकता हूँ। सो e ऑफ x द स्क्वायर माने कि म्यू द स्क्वायर। सो आई हैड यूज्ड द सेम सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला ओवर देयर। एक छोटा सा इंटीग्रेशन फिर से निकलेगा, and it will be quite easy. I'm not going to discuss that. That integration running from minus infinite to infinite will be transformed from 0 to 1. So 0 to 1 x square as it is, f of x replace कर दिया, minus mu square तो ऐसे ही रखा मैंने, ऐसे ही रखा, सिंपल सा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उसका इंटीग्रेशन निकाला, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू भी यूज की। We were having the value of mu is half, so half का square it will be 1/4, and simplifying that we will have 1/20. So variance आया 1/20. Once we are having a variance, then standard deviation बहुत आसान है। क्या करना है? इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। So the positive square root of variance, square root of 1/20 will leads to जो भी वैल्यू आ रही है, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। It is not compulsory that you are supposed to write down 1/√5, 1/2√5, but it's good. It's totally good. So this is a standard deviation. ऐसे निकालते हैं standard deviation, variance, mode, median, expectation, all that values. So are we good with this? Are we good with this? बताइए जल्दी से, then I will able to move further. Are we clear up to this? ऋषभ ऐसे ही नहीं बोल रहा ना बेटा, समझ में आ रही है ना बात बेटा? ऋषभ
हाँ सर, समझ आ रहा है सर। ठीक है, दर्शन, ध्रुवी, काफी सारे लोग यहाँ पे, प्रांजूल, फिर जिग्नेश, मोहम्मद, नैतिक, प्रीत, प्रीत लिम्बानी, राज, श्री नारायण, हाउस यू, विजय राज, all of you are supposed to reply. मोहम्मद, समझ में आ रहा है ठीक से? Are you getting these things properly? Good. Thank you. So this was a story related to the measure of central tendency and measure of dispersion and all the things. Why we had learned all this? अब ये सारा हमने क्यों learn किया हुआ? Why I was having a discussion for this topics? Because we need to learn the probability distribution. उसके लिए ये सारी बातें prerequisites में है. Now, अब देखिए यहाँ तक हमने बात की probability distributions की. Is it? We are knowing how to deal with the probability distribution. X, P of X, वो टेबल निकालना, वो सब पता है. पर क्या हर एक बार, हर एक realistic situation में we may categorize that probability distribution in just two parts, discrete और continuous. Discrete चलिए बहुत आसानी से कर लेंगे कि discrete कब होगा if we are dealing with the counting, कब होगा continuous when we are dealing with the measuring. But काउंटिंग में भी तो काफी सारी कैटेगरीज हो सकती है, मेजरमेंट में भी तो काफी सारी कैटेगरीज हो सकती है. सो वी आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इवन सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. वो क्या है? लेट मी टेक यू फॉर दैट. What are the special kind of probability distributions? So I'm changing my slide and I'm taking you guys towards some spatial probability distributions. Let me present my screen once again with one other PPT. Okay, before that I need to open that PPT. Just give me 1 minute. Yes. Binomial, good. Now, window. Yes. Now this is the core content of second unit. In the second unit, we guys were supposed to deal with the random variables and probability distribution, is it? अब छोटा सा probability distribution का introduction भी हो गया, random variable we are good with that, types of random variable ये सब हमको पता है. पर are we good with some of the spatial probability distribution? Not yet. I'm going to cover all that in this particular slide. अब तक हम clear है कुछ topics से. Hopefully we all are clear with some of the topics like probability. पता है सभी को? We are good with the probability. Even we are good with the conditional probability. Then after random variables, types of random variable, ये सभी पता है. We are good. Even we are good to deal with its probability functions like probability mass function, probability density function. सीखा हुआ है सब, हर कोई बात. Cumulative distribution function, capital F of X. We know how to deal with that. Even from the previous session, now we are good with the measures of central tendency like mean, median, mode. चाहे वो discrete के लिए बात हो या फिर continuous random variable के लिए बात हो, we are good with the measures of this central tendency. Even we are good with the measures of dispersion like standard deviation, variance, all these things. So यहाँ तक clear है सारी लोग. Is it? Now, once we are clear with all this, we may move for the spatial probability distribution. Now, what are that? भूल जाइए इसको. These are the topics now we are going to cover from the second unit. और इसका weightage रहेगा सबसे ज़्यादा. ये, this is very very important. The weightage of this particular will be highest from the unit. दो ऐसे यूनिट है जिसका weightage सबसे ज़्यादा रहेगा. That is the spatial probability distribution as well as the last unit, that is hypothesis testing.
is it? So both these are quite important. Now देखिए, the things we are going to cover: binomial distribution, geometric distribution, Poisson distribution, then exponential, uniform, normal, and both these are some of the rules related to normal. Okay, law of large number and central limit theorem is the concept related to normal distribution. So we are supposed to cover the 6 distribution: binomial, geometric, Poisson, exponential, uniform, and normal. So one by one we will be covering this. Today we will be discussing about the binomial distribution. But before going for the binomial distribution, let me make the things clear. Why we need the binomial, why we need the distributions. Give me just 1 minute. Wait. Okay, good. So let's try to cover the things, cover these topics one by one. But before that, let me make you guys understand why I'm delivering this particular topic, why we are learning distributions. Roadmap, I'm not worried about the roadmap. It's okay. We will be discussing that further. Why we need the probability distribution. This is very, very important. Why? What is the need of this? Look, the most important project and the scientific research studies are conducted with the sample data rather than the entire population. कोई भी रिसर्च है या तो फिर प्रोजेक्ट है, कुछ भी कंक्लूड करना है, then we need to deal with the sample data. We cannot deal with the entire population. Why I'm saying kind of this? Let me make the things clear with one of the practical example. अभी भाई पूरा आधे घंटे के लिए 20-25 मिनट के लिए आई एम जस्ट गोना डिस्कस विद ऑल ऑफ यू एंड आई नीड इंटरैक्टिव सेशन में किसी से भी बात करूं, जल्दी से मेरे साथ बात करना, ठीक है? अब देखिए प्रेजेंट सिनेरियो क्या है. वी आर फाइटिंग विद द कोरोना, इज इट? अब काफी सारे लोग इन इंडिया, the 2-3 different institute, they are trying to invent the vaccine for the corona, is it? If I'm going to talk about whole world, then lots of institutes are there, lots of laboratories are there, they are trying to trace the vaccine for the corona, is it? अब इंडिया की बात कर लीजिए कि भाई एक छोटी सी कंपनी है कहीं पे, सपोज के बॉम्बे में एक छोटी सी कंपनी है, छोटी सी एक लैबोरेटरी है, छोटी सी तो नहीं बोल सकता, सपोज आईआईटी बॉम्बे is trying to trace the vaccine. तो वो क्या करेगी, कैसे वैक्सीन कैसे बनाते हैं? आप लोग कुछ आइडिया है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस है कि भाई वो लेना है, केमिस्ट्री नहीं बात कर रहा है, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, पर क्या होना चाहिए आइडिया जो भी. यस प्लीज सर, वो टेस्ट करते हैं वैक्सीन. हाँ, किसके ऊपर टेस्ट करेंगे बेटा ये बता. कोई लाइक पॉपुलेशन होती है, मतलब जो लोगों को लेते हैं वो लोग, उन पे वो सब्जेक्ट्स. बेटा ये बता रहे. सॉरी, प्रीति सेइंग first they will test on animal on phase 1. Then after that then they will Human. test potential human, sir. यस, इन्फेक्टेड ह्यूमन भी चाहिए ना. ऐसे लोग चाहिए उसको, ऐसे लोग चाहिए कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड है उसको वो वैक्सीन देंगे. देन आफ्टर दे विल ऑब्जर्व द रिजल्ट्स एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग इज फाइन, देन दे विल डिक्लेयर कि ओके गुड, this is the vaccine for the corona, is it? So the similar kind of thing I'm saying with some of the different words. For one of the research, scientific research, we need to have the sample with us. अब इंडिया में अभी हमको पता है कि 35 लाख केसेस है, 35 lakhs of cases of corona in a country right now today. अगर कोई एक इंस्टीट्यूट है, अगर कोई एक लैबोरेटरी है, ये आईआईटी बॉम्बे है जो इसके लिए ट्राई कर रहा है, सपोज क्या वो पूरे 35 लाख लोगों के ऊपर टेस्ट करेंगे, लगता है तुझे? इफ आई एम नहीं करेंगे ना, नहीं कर सकते. इट इज नॉट इवन कन्वीनियंट, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इकोनॉमिकली भी ये कन्वीनियंट नहीं है.
कि भाई सारे 35 लाख को यहाँ पे लेके आओ, हमने एक वैक्सीन बनाई है, पता नहीं है कि ये कोरोना की वैक्सीन है या नहीं है, पर चलिए सबके ऊपर ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होता ना, दे विल चूज अ प्रॉपर सैंपल। मान लीजिए कि 10-15 लोग या तो फिर 100-200 लोग को वो चूज करेंगे, गवर्नमेंट से बोलेंगे कि भाई हमको एक छोटा सा सैंपल दे दो, दोज ऑल वी नीड ऑल दोज पीपल हु आर इन्फेक्टेड, वो ये से 200-200 लोग दे दो, हम उसके ऊपर ट्राई करेंगे, देन वी विल कंक्लूड सम ऑफ द थिंग्स। अगर सभी के लिए प्रॉपर जा रहा है तो वो कंक्लूड करेंगे कि ना दिस इज द रिजल्ट, इज इट ना? फॉर द कंक्लूजन वी नीड द सैंपल, इज इट? सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन डील विद एंटायर पॉपुलेशन, हर एक लोग के साथ बात नहीं कर सकते। नाउ हियर द वर्ड पॉपुलेशन इज इन जनरल मैनर, ओके? હું અહીંયા પોપ્યુલેશન એટલે ખાલી વસ્તીની વાત નથી કરતો. Don't take that particular word as a population. That means I'm talking about number of humans we are having in our country, okay? This is general word for our statistic. ये पूरा आएगा हमारे सेकंड लास्ट यूनिट में, लास्ट और सेकंड लास्ट यूनिट में पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक के ऊपर काफी सारी बातें करेंगे, हम सैंपल के ऊपर बातें करेंगे। बट राइट नाउ जस्ट स्टिक विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि instead of dealing with the entire population we will be dealing with the sample. It is only convenient. अब जब सैंपल के ऊपर बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहां से आया यहाँ पे? सर आप तो बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, अब यहाँ सैंपल, पॉपुलेशन, कोरोना, वैक्सीन कहां पे चले गए आप? Let me connect the things. It is a way to save the sample data to make prediction and draw the conclusion about the entire population. Once we are having a sample with us, if we are having a sample for one of the research, then first of all the very basic stuff will be that we need to save the sample data. We need to identify the nature of that particular sample. हर एक जो सैंपल है ना वो अलग अलग हो सकता है, तो we need to identify the nature of that particular sample. We need to save the sample data, and then we may go for the prediction and conclusion, is it? It refers to frequency at which some events occur, some events or experiment occurs. And don't worry about that particular line because I will make this particular line clear in your mind by one of the example. Wait, no, one more thing. I would like to add one more thing. We know that probability distribution helps to finding all possible values of random variable. ये हमको पता है कि random variable की सारी values हम probability distribution में find कर सकते हैं कि कहाँ पे वो maximum है, कहाँ पे minimum है. So probability distribution help us finding all the possible values of random variable can take between minimum and maximum possible value. This is one of the characteristics of a probability distribution. We know that. Even probability distribution are used to model the real life events for which outcome is uncertain. ज़्यादातर realistic situation, real life events are uncertain. और ऐसी कोई uncertain events के जो अगर मॉडल करना है, mathematical modeling में जाना है, then we are having one of the tool that is probability distribution. कैसे करेंगे? I had included so many word problem. यहाँ पे मैंने काफी सारे word problem include किए इस slide में. So you guys will able to know कि yes ये जो point सर लिख रहे हैं वो सही है. But for that we need to wait up to example. And once we find the appropriate distribution, जो हमने sample choose किया, now if we are clear about its distribution कि इसके लिए कौन सा distribution proper है, appropriate है, then we can use it to make inference and prediction. Inference meaning ki it's a similar word to the prediction. So if we are good with the distribution, then we may go for some of the conclusions, some of the predictions कर सकते हैं. So what we are looking to do, what we are trying to do, consider this outer circle, this bigger circle as a population. Suppose this is the entire population. And this particular smaller circle inside जो मैंने छोटा सा एक circle लिखा है, not circle, oval, ये जो है वो मान लीजिए sample है. One can clearly say that कि sample is a subset of population, वो population का एक छोटा सा part है. Now what we are trying to do, we are going to identify the nature of sample और sample के ऊपर से कुछ conclusion लेना है, and then we will publish that particular for the entire population. Sample के results को identify करके कुछ ठोस conclusion देने हैं, and then will be declared that this will be true for the entire population. This is what we are trying to do. And in this particular process, the probability distribution, the role of probability distribution is quite crucial. कहाँ पे होगा वो role? यहाँ पे होगा sample के साथ. First, we need to identify the nature of sample. उसका nature क्या है? उसमें कौन सा distribution जा सकता है?
डिस्क्रीट के साथ काम कर सकते हैं, कंटिन्यूस के साथ काम कर सकते हैं। डिस्क्रीट में भी 2-3 केसेस है कि वी आर हैविंग बाइनोमियल, वी आर हैविंग पॉइजन, वी आर हैविंग सम ऑफ द अदर। कंटिन्यूस है तो फिर क्या ये नॉर्मल है या एक्सपोनेंशियल है या फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये जो पूरा कंसेप्ट है वो हमारा 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है, पर both these units are literally connected. Both these units are literally connected. Now give me 1 minute, I'm having one of the call, I'm muting myself. Okay, sorry for the disturbance. Work from home is really challenging because we guys are having lots of disturbance while we are working from the home. અરે ડીએ ઓકે બેટા દઉં ઊભી રે એ આ તો છે બેટા તારી પાસે આનાથી તમને ઓકે બીજી આપું હમણાં થોડીક પપ્પા એક કામ કરી લે. Sorry once again. So let's stick with the discussion. So this is the need of probability distribution, the things we are going to use in real life. Now let me stick with it once again and continue. Now you might be certain if you examine the whole population, our results will be exactly correct if I'm going to deal with the entire population. पूरे 35 लाख जो भी केसेस है, हर किसी के ऊपर अगर वैक्सीन ट्राई की जाए तो पक्का जो रिजल्ट आएगा वो पक्का पता चलेगा कि भाई ये वैक्सीन तो डम है, नहीं चलेगी, या तो फिर हर कोई उससे रिकवर हो रहा है, दिस इज अ प्रॉपर वैक्सीन, इज इट? बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना. एज वी सेड दैट वी कैन नॉट टेस्ट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन. सो अ रिजल्ट कैन बी परफेक्ट, सर्टेन if we are dealing with the entire population, but ऐसा तो होगा नहीं. But oftentimes, mostly every time, you only have the sample to work with. हम sample के साथ ही काम करते हैं. And when we are dealing with the sample, to draw the conclusion from the sample data, you should compare the values obtained from the sample with the theoretical values obtained from the probability distribution. क्या करना है, samples में से जो values आई है और theoretically जो value, उन दोनों को match करेंगे हम, देखेंगे कि क्या आ रहा है. We will identify the nature from its जो भी डेटा हमारे पास है उससे उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है कि whether it is normally distributed, whether it is binomially distributed, whether it is exponentially distributed or not. So once we are dealing with the sample, there always a risk. There is always a risk. क्यों? अगर सैंपल गलत चूज कर लिया तो, अरे भाई मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जो सैंपल चूज किया था वो राजकोट में से, एंड राजकोट में इतना बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा कोरोना, कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे वो बहुत ही माइनर सिम्टम्स के साथ इफेक्ट हो रहे. सपोज कि छोटा सा एक वो फीवर आ रहा है, फिर सर्दी है, फिर खांसी है, बहुत ही लाइट सिम्टम्स है. अगर कोई एक वैक्सीन हम लोगों पे ट्राई की जाए, राजकोट के कुछ बंदों पे,
50 लोग राजकोट से चूज करे, उसके ऊपर वैक्सीन ट्राई की जिसको काफी माइनर सिम्टम्स थे और वो वैक्सीन वहां पे काम कर गई, ये 50 लोग रिकवर हो गए, तो कैन वी डिक्लेयर दैट दिस इज अ प्रॉपर वैक्सीन? नो। व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने जिसके ऊपर वो वैक्सीन ट्राई की है उन लोगों में कुछ मेजर सिम्टम्स थे ही नहीं, वहां पे तो सिम्टम्स काफी लाइट थे, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपकी जो वैक्सीन है वो लाइट सिम्टम्स को रिकवर कर रही है, लेकिन अगर मेजर सिम्टम्स है देन योर वैक्सीन विल नॉट वर्क, इज इट? सो दिस इज व्हाट there will be a risk of drawing false conclusion or making false prediction. If we are dealing with an improper sample, तो रिस्क है ही है, कंक्लूजन गलत होने का, डिसीजन गलत होने का रिस्क है ही है. So we need to be sufficiently confident before taking any decision from by setting confidence interval. Now ये जो गलती हो रही है ना, ये जो रिस्क है ना, उसको भी कम कर सकते हैं. कैसे? By setting a confidence interval. Now all these things are purely theoretical, huh? So I will just take 2-3 minutes to make you guys little bit comfortable with all this, because I'm not gonna deep dive in this particular topic, confidence interval, क्योंकि ये तो हमारा पूरा 5th unit है. कॉन्फिडेंस इंटरवल की अभी जो बात कर रहा हूँ ये पूरा 5th यूनिट है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल कि कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करने से कैसे रिस्क कम हो सकता है, और फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट सिचुएशन वो एरर ऑफ मार्जिन भी अलग होता है. क्यों? अगर मैं कोई एक सिचुएशन एक ही बात करूं जहां पे मैं 5% एरर अलाउ कर रहा हूं, और सिचुएशन बी जहां के हो सकता है कि जहां पे मैं 1% एरर भी अलाउ नहीं कर रहा हूं. So we can set all these things using confidence interval. कैसे करते हैं? Let me show. अलग अलग confidence interval होते हैं, 90%, 95%, 99% like that. But there's a 5th unit topic. Hypothesis testing में पूरा कवर करना है. But ऐसे तो नहीं छोड़ सकता मैं आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि I will not feel comfortable if you are not clear. Let me give you one of the example. Wait, let me choose the pen. Then I will suppose to choose the screen. Yes. Now, one of the statement which are you guys here listening? किसी से बात नहीं की मैंने अभी 2-3-5 मिनट तक. Are you guys here? How many of you are attending this session? Yes, sir. Drop a message over the chat box right now. हेलो, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए चैट बॉक्स में. बताइए मुझे हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन. ऋषभ इज देयर, मोहम्मद, दर्शन, ध्रुवी, प्रीत, 5 लोग ही है. श्री नारायण, प्रांजुल, विजय राज, 6-7. अरे बाकी के क्या चालू करके चले गए क्या? इज इट लाइक दैट? वेयर इज दिव्यजीत, वेयर इज पांडे जी, जिग्नेश, नैतिक, राज, ऋषभ तो है, Vijay Raj. Where are the others? Hello. Divyajit are there. Yes. Naitik, Jignesh, Pandey ji, Darshan Maniyar. एक छोटी सी बात पूछ लूं ऋषभ, मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँ ना? बता देना ऑनेस्टली, इट्स टोटली ओके. नहीं सर, अभी थोड़ी ना. नहीं. All the things which we are discussing right now is just for your information. I'm not going to include any of these things or the exam. ये knowledge है, आपके दिमाग में इस टॉपिक को घुसाने की एक छोटी सी ट्राई है ताकि आपका इंटरेस्ट रहे इसमें. ओके. सो if अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ तो जल्दी से मुझे बता देना. आई विल चेंज द मोड. ओके प्लीज. छोटी सी एक बात कर ले चलिए, 2 सिचुएशन की कैसे हो सकता है कि कहीं क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं पे 5% एरर भी अलाउड है, कहीं पे 0.5% एरर भी अलाउ नहीं है. यस, थिंग्स आर दैट. कभी कभी ऐसा होता है. देखिए 2 छोटी सी सिचुएशन, मैंने ये सेम एग्जांपल डिस्कस किया था शायद सी बैच के साथ. चलिए मुझे आप में से कोई एक चाहिए. यस, लेट मी पिक ऋषभ. देयर इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू ऋषभ एंड यहाँ पे बात करूंगा चलिए ध्रुवी की. ध्रुवी, आर यू देयर? ध्रुवी अटेंड कर रही है कि चली गई बेटा? बात नहीं कर रही है ध्रुवी हमसे. ठीक है, ध्रुवी ने मैसेज डाला चैट बॉक्स में. ओके गुड. अब देख ऋषभ, तू क्या कर रहा है? तू बना रहा है बेटा, यू आर द ओनर ऑफ वन ऑफ द चिप्स कंपनी.
potato chips like that? Is it similar to the Balaji? Balaji सभी ने खाई है. तो you are the owner of one of the chips company कि जहाँ पे तू पोटैटो चिप्स जनरेट कर रहा है. तेरी बड़ी सी फैक्ट्री है, काफी सारी आउटलेट है तेरे पूरे इंडिया में, एक बहुत बड़ा आदमी है तू. पर तू बना क्या रहा है? चिप्स बना रहा है. उस चिप्स के पैकेट जिसके एमआरपी है 10 रुपीज, इज इट, एंड यू आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट 50 ग्राम. एक चिप्स, एक पैकेट में 50 ग्राम चिप्स दे रहा है तेरी कंपनी, और उसकी एमआरपी है 50 रुपीज, 10 रुपीज. ओके, I'm not worried about the MRP. Good. And what is Dhruvi's role? Dhruvi is producing gold biscuit. Dhruvi is producing gold biscuit. Dhruvi, तू क्या है बेटा? तू सोने के बिस्किट बना रही है. तेरी कंपनी जो है ना, वो सोने के बिस्किट बना रही है all over the world. You're selling it all over the world. और तेरा भी काम यही है. तू 50 ग्राम्स के बिस्किट बना रही है, 50 ग्राम्स के सोने के बिस्किट. What's wrong with this? सोने के खजाने. अरे बेटा तू तो ना बोल, બધા સાંભળે છે બેટા. अरे कुछ गलती वहाँ पे. Yes, 50 grams. Dhruvi is also producing gold biscuit 50 grams. अब देखिए दोनों, ऋषभ ध्रुवी, ऋषभ 50 ग्राम का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ध्रुवी भी 50 ग्राम का ही प्रोडक्ट बना रही है. फर्क क्या है? ये पूरा गोल्ड का है और ये पोटैटो चिप्स है. दिस इज नथिंग बट द व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पोटैटो चिप्स. गुड. अब कुछ एक कंप्लेन आई सपोज कस्टमर की तरफ से. पार्ले जी गोल्ड कौन बोल रहा है? प्रीत. Up, both of them, Rishabh as well as Dhruvi, got the complaint from the customer. बहुत बड़ी कंपनी है दोनों की. अब कुछ कंप्लेंट्स आ रही है कस्टमर की तरफ से. क्या कि भाई ऋषभ की कंपनी में, ऋषभ की फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी पैकेट्स वो बना रहा है, उसमें वेट का कुछ इश्यू है कि वेट इज नॉट प्रॉपर. वेट इज नॉट प्रॉपर. आप लिख रहे हो ऋषभ की 50 ग्राम आप लोग चिप्स दे रहे हो, पर 50 ग्राम चिप्स है नहीं. ये कंप्लेन है कस्टमर की. सिमिलर काइंड ऑफ कंप्लेन इज दैट फॉर ध्रुवी. कि ध्रुवी भी जो 50 ग्राम की गोल्ड बिस्किट बना रही है, उसका वेट कुछ प्रॉपर नहीं है. उसका वेट कुछ प्रॉपर नहीं है, गलती है वेट में. अब अगर ऋषभ तेरी कंपनी में ऐसी कोई कंप्लेन आए कस्टमर की तरफ से, तू क्या करेगा? तू जाएगा अपनी कंपनी में तो ऑब्जर्व करेगा. क्या ऑब्जर्व करेगा ऋषभ? तू बता अभी. अब दिस इज द सिचुएशन विथ यू. तू सर सैंपल्स लूंगा सर उनमें से और देखूंगा कि वो जो बोल रहे हैं कि वो सही है. ऋषभ जाएगा अपनी कंपनी पे, 2 3 4 5 पैकेट उठाएगा. मान लीजिए कि ऋषभ ने 3 पैकेट उठाया रैंडमली, पूरा लॉट पड़ा हुआ है प्रोडक्शन का. उसमें से ऋषभ क्या करेगा? वो रैंडमली पैक उठाएगा. एक पैकेट यहाँ से उठाया, एक वहां से उठाया, एक फिर पीछे से उठाया, और वो रैंडमली पैकेट उठाने के बाद वो उसको मेजर करेगा ना कि भाई चलिए जो कस्टमर की कंप्लेन है वो सही है या नहीं है. तो उसने पहले पैकेट खोल दिया, पहले पैकेट खोला, उसका वेट निकाला, और वेट निकालने के बाद उसको पता चला कि भाई ये तो भाई 50 ग्राम का बोल रहे, पर दिस इज 53 ग्राम्स. पहला पैकेट उसने वेट किया 53 ग्राम. दूसरा पैकेट उठाया उसने, उसमें 47 ग्राम. फिर तीसरा पैकेट उसने खोला, उसमें वेट निकला 51 ग्राम. Is it? These are I am randomly saying. Is it okay? So just focus on the weight, nothing else. पहले का वेट 53, दूसरे का वेट 47, फिर 51. तो एक बात तो ऋषभ क्लियर हो गया कि भाई चलो भाई गलती तो है, कस्टमर जो बोल रहे वो सही है. सही ना ऋषभ? कस्टमर ने जो कंप्लेन की वो सही है. देख कहीं पे 53 जा रहा है, कहीं पे 47 जा रहा है, कहीं पे 51 जा रहा है. तो आप जो प्रॉमिस कर रहे हो कस्टमर को कि हम 50 ग्राम दे रहे, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे शायद हो रहा है. Is it? So you will be in position, you will be in state कि we need to think. Is it? कि कहाँ पे गलती हो रही है. अब now let's talk about ध्रुवी. ध्रुवी तू है? अनम्यूट कर अपनी माइक को. ध्रुवी बात कर. मना मत कर देना कि I cannot talk. I am in out of station. अरे बाप रे बाप.
चलो अभी ये ध्रुवी की गोल्ड वाली कंपनी है ना, कोई एक बंदा हैंड ओवर करेगा, ध्रुवी ने पूरा सेल कर दिया, किसी को सेल कर दिया, चलो कौन खरीदेगा ये सोने की कंपनी? सर कौन मैं खरीदेगा? खरीद लूंगा सर। कौन है बता? प्रीत Who's सर। that? सॉरी, हाँ चलो प्रीत को बेच दी। ध्रुवी sold that gold factory to प्रीत अब तुझे बेच दिए ध्रुवी ने, तू जो भी हिसाब किताब करना है उसको पैसे दे देना, ठीक है? अब पूरी कंपनी तेरी है। नाउ यू आर द सीईओ, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब प्रीत तू बता, इस सिचुएशन में तू क्या करेगा? कंप्लेन है तेरे पास कि गलती है वेट में, तो तू भी सिमिलर एक्ट ही करेगा। तू भी जाएगा अपनी कंपनी में, तू भी 3 बिस्किट रैंडमली उठाएगा और देन यू विल गो फॉर द मेजरमेंट, इज इट? अब मान ले कि तेरा मेजर भी यही आया कि पहले बिस्किट का वेट है 53, दूसरे का वेट आया 47 एंड थर्ड का वेट आया 51, इज इट? जो वेटेज जो रैंडम सैंपल का डेटा था ऋषभ के साथ, वही तेरे साथ भी है। 53 है, 47 है, 51 है। तूने कंक्लूड कर लिया कि भाई गलती तो है, कस्टमर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब देख, this is the scene with you, this is the scenario with Rishabh. Rishabh is producing potato chips, you are producing gold biscuit, and almost all the rest of data is same. क्या आप भी 50 ग्राम का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ऋषभ भी 50 ग्राम का प्रोडक्ट बना रहे, आप में भी जो भी मार्जिन ऑफ एरर है वही मार्जिन ऑफ एरर ऋषभ में भी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों सिचुएशन में ज्यादा टेंशन में कौन आएगा? ऋषभ आएगा या फिर प्रीत आएगा? Who will be more worried? ऋषभ ज्यादा चिंता करेगा या प्रीत करेगा? बताओ। प्रीत करेगा। तुझे क्या लगता है? क्यों तू क्यों करेगा? सारा सैंपल डेटा तो देख, दोनों सेम ही है। सर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना मेरी। यस, अरे तेरे ऊपर तो कोई एफआईआर कर देगा। देख यहाँ पे 47 ग्राम दे रहा है तू, 50 ग्राम गोल्ड का बोल के, अगर तू 47 ग्राम दे रहा है तो क्वाइट पॉसिबल वन ऑफ द कस्टमर विल फाइल एफआईआर अगेंस्ट यू, इज इट ना? कि भाई ये लोग, ये प्रीत की कंपनी वाले तो चीट कर रहे हैं। अगर 53 दे रहा है तो कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, वो हंसते से चला जाएगा, लेकिन तेरा लॉस ज्यादा है, 51 में भी तेरा लॉस है। ऐसे तो ऐसा होगा कि भाई 2 साल बाद तेरी कंपनी एक्सपांड होने की बजाय कम हो जाएगी, गिर जाएगी, बिक जाएगी, हाँ ना? सो यू विल बी मोर वरीड पर्सन। और अगर हम ऋषभ का सोचे, नाउ लेट्स स्विच ओवर टू द ऋषभ कोई चिंता करेगा? अरे भाई छोड़ो ना, 3 ग्राम चिप्स ही तो है, कस्टमर को मजे करने दो, आई एम गुड विद दिस। और 47 ग्राम अगर दे रहे तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई 3 ग्राम चिप्स में क्या है, एक आधी चिप्स कम आई, वी आर गुड विद दैट। आधी चिप्स तो वैसे भी गिर जाती है पैकेट खोलने में, इज इट? सो the similar situation with both of you, but Rishabh will not get worried. You will be really in a quite big tension, is it? So देख यहाँ पे margin of error देख, शायद मान लेते कि margin of error यहाँ पे 3% है, which is similar to both of you. But ऋषभ जो है ना, वो 3% error allow कर सकता है। It's okay भाई, कोई अभी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे मशीन है उसको रन करने दीजिए, मेंटेनेंस नहीं करना है अभी। गुड विद दिस पर्टिकुलर डेटा, अगर कहीं पे ज्यादा कहीं पे थोड़ा सा कम जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, प्रोडक्शन चालू रखो अपना। पर तू तुरंत ही प्रोडक्शन रुकवा देगा कि भाई रुक जाओ, किसी को और प्रोड्यूस नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं, जब तक कि हमारा मशीन ठीक ना हो जाए, इज इट? सो यहाँ पे 3% मार्जिन ऑफ एरर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन तू नहीं कर रहा है। सो दैट प्योरली डिपेंड ऑन सिचुएशन, इज इट? सो दिस इज व्हाट, कि जहां पे कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करना होता है, और इसके लिए पूरी थियरी है हमारे पास। वी आर हैविंग द होल थियरी विद अस, how to set all this, कब अलाउ कर सकते हैं, कब अलाउ नहीं कर सकते, when a hypothesis is correct, when a hypothesis is wrong. So we are supposed to learn all these things in our 5th unit, is it? So यहाँ ये पूरा कनेक्टेड है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि हम अब स्टडी करने वाले हैं। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट वन। सो ओवरऑल हमने क्या बात की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? many probability distribution can be defined now the things we are going to discuss, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ फैक्टर्स सच एज मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन। उसके फैक्टर्स से उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन कर सकेंगे। हर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला अलग होगा, ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ फॉर्मूला।
There are different shapes, models, classification of the probability distribution. हर एक probability distribution का shape अलग होगा, उसका model अलग होगा, उसके classifications अलग होंगे. And mainly we are going to divide this probability distribution into two categories, two types, two kind, discrete and continuous. Discrete probability distribution, continuous probability distribution. Now let's deal with the discrete first. What is discrete? Discrete क्या है? Discrete probability distribution relates to discrete data. यहाँ पे discrete random variable से साथ बात होगी, जो probability distribution की बात करे वो discrete होगा. And most of them is we will be dealing with the counting or attributes, and is often used to model uncertain events where the possible values for the variable are either attribute or countable. हमको पता है discrete मानी की counting, is it? So mostly we will be dealing with the counting. दो काफी फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए यहाँ से चैप्टर दो पार्ट में है, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस. मैं अभी आपको एक पिछली स्लाइड में लेके जाऊंगा, पर तो डिस्क्रीट वाली बात अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें से दो काफी फेमस है, दो बहुत ही यूजफुल है, दैट इज बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अमोंग दैम इसमें से ये बाइनोमियल और पॉइसन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें से ये बाइनोमियल तो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ 12th साइंस सिलेबस. याद है किसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? किसी को याद है? एनी ऑफ यू? सर हाँ मोहम्मद प्लीज. हाँ थोड़ा थोड़ा सा. सा. Is it binomial distribution? Kind of formula was like that. Let me show. NCX, P raised to X and Q raised to N minus X. ऐसी कुछ formula थी, हम लोग study कर रहे थे. That is a formula for the binomial distribution. So there are two common discrete probability distribution जो कि काफी ज्यादातर use होते हैं. That is binomial and Poisson. Is it? So first we will gonna cover both this, but let me show now. Let me take to one of the previous slide कि जहाँ पे मैंने कैप्टर को जो कैटेगराइज किया था. Yes, this is a slide. अब कैप्टर इस तरीके से कैटेगराइज हो रहा है, देख. This is nothing but the roadmap for the distribution, this particular distribution. हमको पता है रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस. तो डिस्क्रीट के लिए जो भी हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, आरवी स्टैंड्स फॉर द रैंडम वेरिएबल, ओके. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करने वाले वो है बाइनोमियल, geometric and Poisson. These three are the distribution relates to discrete probability distribution. And for the continuous, we'll be studying normal, exponential and uniform. तो नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, ये तीन हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस के लिए, और ये तीन हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट के लिए. अब सारी बात क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं. वी आर गुड टू डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो कैसे डिफाइन करते हैं, when the binomial distribution is applicable. So I will take you towards that. Wait, yes. ये बात हो चुकी है. Good. What is binomial distribution? I'm giving you one of the slide, and I need a break of 2-3 minutes. I need to. बेटा कब आऊँ? एक मिनट. I just need 3-4 minutes window. Okay. I need to take care for my daughter. So just observe this particular slide. I will be back in 3-4 minutes. Okay.
Sorry guys, I'm back. अरे सो जो स्क्रीन के ऊपर है, किसी ने देखा व्हाट इट सेज? कुछ याद आ रहा है? To deal with the Bernoulli binomial distribution, first we need to be sure that the data we are having, the experiment we are dealing with, is a Bernoulli binomial distribution. It's a binomial experiment, sorry. जो एक्सपेरिमेंट के साथ बात कर रहे हैं ना, वो अगर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तब उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. Now, what is binomial experiment? A binomial experiment is an experiment that satisfies the following condition. कौन सी कंडीशन है देखिए पहले. That experiment must be repeated for fixed number of trials. उसके fixed trials होने चाहिए. And each trial is independent from other trials. Suppose I am tossing a coin for 6 times. Rishabh, I am tossing a coin for 6 times. तो देख, I am repeating the event, same experiment for fixed number of times, is it? And पहली बार में जो कॉइन टॉस करूं, दूसरी बार करूं, तीसरी बार करूं, हर एक बार रिजल्ट जो है वो पिछले इवेंट से इंडिपेंडेंट है. पहली बार मैंने टॉस किया, हेड आया, इट विल नॉट गोना इफेक्ट कि सेकंड का रिजल्ट क्या आएगा. उससे सेकंड के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थर्ड टॉस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फोर्थ टॉस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ईच एंड एवरी ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इंडिपेंडेंट होंगे. एंड देन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. ये काफी जरूरी है. देयर आर only 2 possible outcomes of interest in each trial. हर एक ट्रायल में 2 ही आउटकम होने चाहिए. Only 2. Out of that 2, one must be considered as a success, दूसरे को फेलियर बोलेंगे. So अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो 2 ही आउटकम है, तुझे पता है, इधर हेड और टेल. मैं उसमें से बोल रहा हूं कि getting a head is a success, then getting a tail will be failure, will be considered as a failure, is it? So there must be only 2 possible outcome, जिसमें से एक को सक्सेस बोल सकें, दूसरे को फेलियर बोल सकें. What is this? We are discussing that conditions for the binomial experiment. And the third one, the probability of success is same for each trial. जिसको आप सक्सेस बोल रहे हो. If I am saying that in a toss of coin, getting a head is a success, तो पहले टॉस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मानी कि हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. मैं दूसरी बार टॉस करूं तो भी हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरी बार करूं तो भी 1/2, चौथी बार करूं तो भी 1/2, 10 टाइम्स करूं तो भी 1/2, is it? So for each and every trial, probability of success must be same, must remain same. वो बदलनी नहीं चाहिए. And last, this is not, I cannot say this is a condition, but there is one more information related to x, where small x, that x will be the number of counts, will be the count of number of successful trials. कितने, अगर मैं 10 बार कर रहा हूं तो उसमें से कितनी बार सक्सेस मिल रही है. मैं 15 बार वो ट्रायल रिपीट कर रहा हूं तो मुझे 15 बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं तो उसमें से number of success कितनी है, that particular will be denoted as x. Okay, so we are actually worried about this 3, we are concerned about this 3. If one of the experiment is following this 3 condition, then that experiment will be known as a binomial experiment. Yes, बोल, कौन बात करेगा? किसी ने अनम्यूट किया? नहीं किया. Okay, all of you are here attending. Hello, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ना आज के लिए. Hello, Sri Narayan, Raj, are you guys comfortable now? Sure. आज लगता है कि वो चला गया. प्रांजुल तो है, देख. Are we good? Okay, now let's decide. Let me give you some of the notation which we are going to use for this particular distribution. Binomial में जो भी हम notation use करेंगे वो आपको पहले बता दूं. Small n, the number of time the trial is repeated. हम एक एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं? मैंने पिछले जो एग्जांपल दिया कि एक कॉइन में 6 बार टॉस कर रहा हूं. In that case n की वैल्यू 6 होगी. The number of time we are repeating that experiment, that will be small n, and the number of times a trial is repeated, small p, small and italic p, probability of success. ये पूरा कनेक्ट कर सकेंगे आप क्योंकि आपने 12th में यही नोटेशन यूज किया हुआ है. p, probability of success in each trial, in single trial. Okay, if p is a probability of success, then q is a probability of failure. Or we know that the total probability is always 1, so p plus q, small p plus q will be always 1.
अगर आपके पास p है तो q निकल सकता है, q है तो p निकल सकता है. अगर आपके पास q की वैल्यू है then 1 minus q will give you p. अगर आपके पास p है then 1 minus p will give you q. Is it? So p माने की probability of success, q माने probability of failure, and x the number of successes we required. X the random variable, this is the random variable, represents a count of number of successes in trial. कि भाई एन ट्रायल में से कितने में आपको सक्सेस चाहिए नहीं चाहिए. डोंट वरी अबाउट दिस एक्स, ये तो क्लियर होगा एग्जांपल से ही, बट दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट. एन नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिपीटिंग दैट एक्सपेरिमेंट, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. नाउ as we are clear about okay, what is binomial experiment distribution की बात नहीं की, देखो अभी experiment की बात करी. हमको पता है binomial experiment क्या है, what are the notation. Now I am throwing one of the situation towards you and you need to decide whether the experiment which I am talking about is binomial experiment or not. वो experiment binomial है या नहीं है, ये आपको decide करना है. I am giving you one of the example. Now as per the instruction, what is that? Decide whether the following experiment is binomial experiment. If it is, then specify the value of n, p and q. आपको n की, p की, q की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, and list the possible value of the random variable x. कि x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है. If it is not binomial experiment, then explain why. तो आपको डिसाइड करना है कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो बाइनोमियल है या नहीं. अगर वो है तो n, p और q की वैल्यू मिलेगी. n number of time we are repeating the trial, probability of success, probability of failure. अगर नहीं है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट तो बताना है कि क्यों नहीं है. चलिए, this is the situation and you are supposed to answer. You randomly select a card from deck of cards. 52 cards का पूरा पैक आपके सामने, उसमें से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है. ऑब्जर्व, you are supposed to select a single card, a card from the deck of cards. Now and not if the card is king. अगर वो king है ना, then you are supposed to note it down. आपको वो याद रखना है कि this is a king. Or in other words, if you are getting king, then that will be considered as a success. Okay, that is success. So note down if it is a king. You then put the card back. आपको एक कार्ड उठाना है, देखना है किंग है या नहीं है तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक, आपको वो कार्ड वापस रख देना है. अगर वो किंग है तो आप याद रखेंगे, ठीक है चलो ये किंग था. फिर वो देखने के बाद वापस रख देना वहीं पे पूरा पैक के अंदर वापस. तो पैक में फिर से 52 कार्ड्स है और यू विल रिपीट द प्रोसेस फॉर 8 टाइम्स. आपको ऐसा 8 बार करना है. कार्ड लेना है, देखना है किंग है, यू गॉट सक्सेस, है या नहीं है, कार्ड वापस रख दो, फिर से उसको सफल कर दो, फिर से कार्ड ड्रॉ करो, किंग है नहीं है मार्क करो, फिर से रख दो. यू आर सपोज्ड टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 8 टाइम्स. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट is this particular experiment will be considered as a binomial experiment or not? This is my question. Now it's your time. You will reply by unmuting yourself. I'm waiting for your answers. क्या ये binomial experiment होगा, नहीं होगा, क्या है? कौन बताएगा मुझे whether this particular experiment will be considered as a binomial experiment or not? Am I audible to all of you? Mohammad, Rishabh, Pranjul, Dhruvi, Raj, Preet. Yes, sir, you are audible. I think it will be अरे a प्रांजल क्या binomial experiment because it is mutually exclusive. अरे प्रांजल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कहाँ पे घुस गया? यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या जरूरत है? ये इंडिपेंडेंट होंगे ना. ओके ओके. सो सर बाइनोमियल होगा सर, क्योंकि सर इसमें जो कंडीशंस हमारी हमने आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंस की करी थी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. सर, एक तो सर जितने भी ट्रायल्स है वो सर आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वो कार्ड्स दोबारा वापस डाले हमने. यस करेक्ट. और दूसरा कि एक सक्सेस और एक फेलियर है. लाइक अगर एक बुकिंग निकाला तो सक्सेस है, बाकी सारे फेलियर है. यस और प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही और सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है सर, इसलिए बाइनोमियल हो. Exactly perfect. So both of you, Pranjul and Rishabh, both of your answers is absolutely correct. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. देख, yes, this is binomial experiment.
क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि हर बार हम जब कार्ड पिक कर रहे हैं तो या तो किंग होगा या नहीं होगा, हमको नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब किंग मिले तो उसको हम कंसिडर कर रहे कि भाई अगर किंग मिल रहा है तो सक्सेस। तो इफ यू आर एसोसिएटिंग सक्सेस विद द गेटिंग किंग, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम किंग को सक्सेस बोल रहे हैं तो आप बताओ मुझे कितने किंग होते हैं पूरे पैक में? 4 किंग होते हैं, and we are picking a single card. That means probability of getting king will be 4 by 52, is it na? Or in other words 1 by 13, simplified version. So probability of success होगी 1 by 13. अब पहली बार अगर सक्सेस मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, हम वो कार्ड फिर से रख रहे हैं ताकि जब दूसरी बार मैं कार्ड पिक कर रहा हूं तो फिर इस सिचुएशन में भी मेरे सामने 52 पैक ही है, 52 कार्ड्स ही है, तो फिर से किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 by 13 ही होगी। तो आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट फॉर 8 टाइम्स। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए है, तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 8 हो गई। फिर हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी हमने देखा कि पहली बार किंग मिले या दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, हर बार चांसेस सेम है। अगर पहली बार किंग मिल गया तो दूसरी बार ना मिले, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है। पहली बार मिला ना मिला, उस रिजल्ट पहली बार सक्सेस मिली या ना मिली, उसका कोई इफेक्ट दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि मैं वो कार्ड वापस रख रहा हूं ना, तो हर बार वो सेम ही रहेगा। सो इंडिपेंडेंट है, हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस सेम है। तो यही तो तीनों कंडीशन थी। p की वैल्यू 1 by 13, अगर p मेरे पास है, n है, p भी है, p इज 1 by 13 नाउ। इफ आई एम हैविंग p तो फेलियर भी कंसिडर कर सकते हैं आप, 1 minus p कर लीजिए, या तो फिर मैन्युअली काउंट कीजिए। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 4 में से कोई एक किंग ना आए, दैट मीन्स 48, 4 किंग नहीं आने चाहिए, उसके अलावा कोई भी कार्ड आए तो इट्स ओके। तो 48 डिवाइड बाय 52 मानी कि 12 by 13। और आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 minus p, 1 minus 1 by 13 will leads to 12 by 13। तो ये बाइनोमियल है और npq की वैल्यू आ गई। चलिए, देयर इज अ वैल्यू ऑफ n, देयर इज अ वैल्यू ऑफ p, देयर इज अ वैल्यू ऑफ q। और एक बात आइडेंटिफाई करनी है, देखिए, if it is a binomial distribution, we are also supposed to identify the value of x. Now what is x? What is x? What was x? X is number of successes in n trials. हम ये ट्राई कितनी बार कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ऋषभ? 8 बार, is it ना? Because n is having a value 8. तो तुझे क्या लगता है कितनी बार सक्सेस मिल सकती है? ये लिस्ट कर। You're not supposed to predict. 8 ट्राई में से if I'm considering that getting a king is a success, तो what are the chances कि कितनी बार सक्सेस मिल सकती है? कम से कम कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? कम से कम एक ही बार मिल सकती है ना सर? कम से कम एक ही बार क्यों? ऐसा हो गया, नहीं, ये सब नहीं, हाँ, बोल। ज्यादा से ज्यादा 8 बार मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा 8 बार, कम से कम बोल। एक भी बार नहीं। एक भी Zero. बार नहीं मानी कि 0, इज इट ना? हो Yes, सकता है एक भी बार किंग ना निकले, Yes, sir. हो सकता है एक बार निकले, हो सकता है 2 बार निकले, हो सकता है 3 बार निकले, हो सकता है 4, 5, 6, और ज्यादा से ज्यादा क्या, इफ आई एम क्वाइट लकी, इफ आई एम वेरी वेरी लकी, तो 8 बार किंग निकले, इज इट? Yes. So x Yes, is sir. what? X is number of successes. X is number of successes, और यहां पे x क्या वैल्यू लेगा? देख, 0, 1, 2, 3 और मैक्सिमम 8। एक से आगे हो सकता नहीं है, 8 से आगे नहीं जा सकता। So observe this, x is random variable and it is discrete, is it? So we can Yes. say this is a Bernoulli experiment, binomial experiment, या तो उसके लिए और भी एक नाम है, that is Bernoulli experiment, is it? So this is binomial experiment surely, and once we are clear about our experiment कि हमारा जो experiment है वो binomial experiment है, तब जाके हम बात कर सकते हैं binomial distribution की। उसके अलावा binomial distribution applicable ही नहीं होगा। So binomial distribution कहीं पे अप्लाई करने के लिए पहले आपको ये देखना है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो सिचुएशन है, वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। अगर वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सो यस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल की जिसमें वो बर्नौली एक्सपेरिमेंट था, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट था। नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यू रोल अ डाई 10 टाइम्स। आपके हाथ में एक डाई है, आपको 10 बार रोल करनी है, and note down the number the die lands on. जो भी नंबर आ रहा है डाई के ऊपर वो आपको नोट करना है। अब ये बताओ कि अगर इसको मैं एक्सपेरिमेंट कंसिडर करूं तो क्या ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है?
वेल नहीं दिस सर, सर अभी आउटकम ही नहीं है ना। ऋषभ बोल आपने रहा है बोला नहीं नहीं होगा। outcome। चलो और कोई ऋषभ का आंसर है नहीं है। गुड गुड ऋषभ, वेट नाउ। और बताओ हर कोई, जो जितने भी बंदे यहाँ पे, हर कोई बताना चाहिए कि ये बाइनोमियल होगा कि नहीं होगा। प्रांजुल तू बता, हाँ या ना बोलना है सिर्फ। सर आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि सर सक्सेस और फेलियर का तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। ओके, प्रांजुल भी हमें बोल बस रहा है नहीं। डायरेक्टली हाँ प्रांजुल, वो बाद में डिस्कस करते आउटकम हैं। तो कुछ है ही प्रांजुल बोल रहा है नहीं है। चल दर्शन मनियार तू बता। दर्शन मनियार, दर्शन परमार, दोनों, बोथ ऑफ यू। दर्शन मनियार, दर्शन परमार, ये दोनों ने चालू करके। ओके, दर्शन परमार इज सेइंग नहीं होगा। गुड। मनियार, दर्शन मनियार, उसने ये चालू करके साइड में रख दिया है। सेम सर एज डीके से। डीके कौन है? उस डीके? ओके, DKU. Okay. Okay, well, Dhruvi, what's your conclusion? Whether this particular will act as a binomial or not? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? ध्रुवी शायद अटेंड नहीं कर रही है ठीक से, क्योंकि वो कुछ काम में है। ठीक है, दिव्यजीत, आर यू देयर? दिव्यजीत, हर्षवर्धन, पांडे जी आज बात ही नहीं कर रहे हमसे। दिव्यजीत, अरे क्या यस सर नहीं बोलना है, ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं होगा ये बताना है। नहीं पता है तुझे, तू अटेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये। जिग्नेश, मोहम्मद, नैतिक, प्रीत, राज, ऋषभ ने बोल दिया। श्रीनारायण, सर नहीं होगा, राज बोल रहा हूँ। राज बोल रहा है नहीं होगा। सर मोहम्मद, सक्सेस आई थिंक इट विल नॉट बी। मोहम्मद भी मना कर रहा है। ओके, इट वॉन्ट। ओके ओके, yes, this will be not considered as a binomial experiment. The reason is that यहाँ पे सक्सेस क्या है मैंने एसोसिएट किया ही नहीं, इज इट ना। अब व्हेन आई एम रोलिंग अ डाई, हाँ ये एक बात फिक्स है कि 10 टाइम्स हो रहा है। आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देख, वी आर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स एंड ईच एंड एवरी ट्रायल विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। पहली बार मैं डाई रोल करूँ, जो भी नंबर आया उस रिजल्ट का दूसरी ट्राई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ईच एंड एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। वी आर रिपीटिंग दिस ट्रायल 8-10 टाइम्स, सो वो भी फिक्स है। पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, किसको सक्सेस बोलूं मैं? यहाँ पे मेरे पास 6 आउटकम होंगे। इफ आई एम रोलिंग ए डाई, देन माय आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 6, और मैंने बोला ही नहीं कि सक्सेस क्या है। गेटिंग 1 इज अ सक्सेस, तो ठीक है, ये बर्नौली हो गया, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और रेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी 5/6। पर मैंने नहीं बोला है कि व्हाट इज सक्सेस, सो वी कैन एसोसिएट सक्सेस विद एनी ऑफ देम, इज इट? सो अगर मैं नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि सक्सेस क्या है, तो मेरे पास आउटकम 6 है। अगर 6 आउटकम से, तो बर्नौली नहीं होगा, बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि बाइनोमियल होने के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाँ या तो ना, या तो सक्सेस या तो फेलियर, इज इट? So it will be not considered as a binomial experiment, while each trial, यहाँ पे सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट है जैसे हमने बोला, but there are more than 2 possible outcomes, 1 2 3 4 5 6, so ये बाइनोमियल नहीं है। इसको बाइनोमियल बनाना है, क्या करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि सक्सेस गेटिंग एन इवन नंबर इज अ सक्सेस, तो ये बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इवन नंबर 3 आएंगे, 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस विल बी 1/3, 1/2। If probability of getting success is 1/2, then Q भी होगा 1/2, is it? पर मैंने बोला ही नहीं है कि सक्सेस क्या है यहाँ पे। So this situation is not binomial. Good. But बना सकते हैं इसको, अभी नहीं बनाना है। Now, good. So finally, we can conclude some of the things. The discrete probability distribution is used for the data, which is having a nature that whether it is pass or fail, yes or no, good or defective, हाँ या ना में जो जवाब हो ना, सक्सेस फेलियर, तभी ये बाइनोमियल अप्लाई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इट अलाउस टू कंप्यूट द नंबर ऑफ सक्सेसेस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट विल अलाउ अस, कितनी बार सक्सेस मिल रही है वो हमको अलाउ करेगा ये। इन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस कुड मीन एनीथिंग टू यू वांट टू कंसिडर। सक्सेस आप किसी को भी बोल सकते हो, पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम, किसी को भी सक्सेस बोल सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल था जो था
गेटिंग ए किंग, तब हमने क्या कंसिडर किया था कि किंग मिले तो सक्सेस, किंग ना मिले तो फेलियर, इज इट ना? अब उससे उल्टा भी हो सकता है। अगर उस गेम को मैं ऐसे डिजाइन करूं कि अगर यू आर सपोज टू पिक ए कार्ड, अगर किंग आए तो आप आउट है, किंग नहीं आए तो आप यू आर इन द गेम। तो इन दैट केस व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि किंग मिले वो फेलियर है, किंग ना मिले तो सक्सेस है, इज इट? सो एज वी नो दैट सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो वी कैन एसोसिएट सक्सेस विद एनी ऑफ देम। पॉजिटिव आउटकम के साथ भी सक्सेस को एसोसिएट कर सकते हैं, नेगेटिव आउटकम के साथ भी सक्सेस को एसोसिएट कर सकते हैं। दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सक्सेस को आप किसी के भी साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ यूजिंग ऑल दिस डेटा वी कैन define binomial distribution. Now we are ready and loaded to discuss about the binomial distribution. अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं की, हमने बात की पूरी सिचुएशन की कि कहां पे बायनोमियल अप्लाई होगा। अब ये सारी सिचुएशन अगर है ना, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, तब जाके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। वो क्या होगा? दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई एम नॉट गोना डिस्कस इट राइट नाउ बिकॉज आज कुछ ज्यादा हो गया। 2 टॉपिक हमने कवर किए, वो कंटिन्यूअस के लिए मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे बायनोमियल के लिए ये पूरा सेकेंड यूनिट के लिए हमने थोड़ा बेस प्रिपेयर किया, तो थियोरेटिकल कंसेप्ट, थियोरेटिकल डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो आई कैन अंडरस्टैंड के it will be a little bit boring if I will trash you guys for the distribution right now. Okay, so let me stop the recording first. We'll be discussing about the binomial distribution from the very next lab.